Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Hope so you all are doing well. So we were on the chapter 2 of Transformer, and we have already discussed about equivalent circuit of the transformer, and what we saw that how can we develop an equivalent circuit of a transformer, and how can we approximate it, and how can we develop a simplified version of it in order to analyze the whole circuit. So at the end of the day, what we had the equivalent circuit of simplified equivalent circuit of the transformer, if this is referred to the primary side, and this is a simplified equivalent circuit of the transformer when it is referred to the secondary side. And knowing that excitation branch draws a very small amount of current that can completely be ignored. So what we only left with the winding resistances, their equivalent resistance, and how can we find them out. So again, this is if the circuit is referred to the primary side and if the circuit is referred to the secondary side. Now, the next thing is how we can determine the transformer model's parameter. So the parameter of the transformer model, what do you mean by it is transformer parameters means that we have to find the primary winding resistance, secondary winding resistance, primary winding inductance, secondary winding inductance. We have to find the value of excitation branch, which includes RC and XM. We have to find what should be the power that is drawing from the primary side, and what should be the amount of power that is developing on the secondary side. So in order to develop, in order to understand, in order to determine the transformer parallel parameter, we have to perform two type of tests. One test is called the open circuit test, and the other one is called the short circuit test. So by performing open circuit and short circuit test, we can find out the value of each and every parameter of the transformer. So see, this is a transformer. We have applied a primary, some input voltage on the primary side, and there is a certain circuit on the secondary side. So we have to connect a wattmeter here. Okay. So wattmeter actually it's indicated by its name. It gives us the wattage. It gives us the information of the power. It gives us the information of the ampere. Total जितना भी current यहाँ से draw हो रहा है, how much potential is drawn from here, what should be the total amount of power developing here, and also the power factor of that particular जहाँ पे भी हम उसको connect करेंगे उसकी हमें power factor की भी information देगा wattmeter. So all of this physically wattmeter connectivity, we can perform the open circuit and short circuit test. Now we have to see how we can perform the open circuit test. So in open circuit test, as it is indicated by its name, the secondary winding is open circuited and a full load rated voltage is applied to the primary side. अच्छा ओपन सर्किट है, सो इट मींस दैट सेकेंडरी को हमने यहाँ से ओपन कर देना. ओपन का मतलब ये होता है कि इसके टर्मिनल्स को हमने ओपन कर देना. अब यू नो दैट कि जब हमारे पास जब भी सर्किट ओपन होगा वहां पे हमारे पास किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं करेगा. सो इट मींस दैट इफ द सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड हियर, देयर इज नो अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग ऑन द सेकेंडरी साइड. सो ऑल वी लेफ्ट विद द प्राइमरी करंट एंड द प्राइमरी वोल्टेज. अच्छा, अब दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे क्या है, एंड वी हैव टू अप्लाई अ फुल लोड रेटेड वोल्टेज ऑन द प्राइमरी साइड. फुल लोड रेटेड वोल्टेज का मतलब क्या है, जितने भी ट्रांसफॉर्मर की मैक्सिमम रेटिंग वोल्टेज है, मतलब द मैक्सिमम वोल्टेज दैट अ ट्रांसफॉर्मर कैन बेयर एट अ फुल लोड व्हेन वी आर करेक्टिंग अ फुल लोड, एंड उसकी जितने भी मैक्सिमम वोल्टेज वो ड्रॉ करेगा या लेगा, वो हमारे पास फुल लोड रेटेड वोल्टेज होती है. सो हमने ओपन सर्किट टेस्ट में सेकेंडरी को ओपन कर देना है और प्राइमरी के अक्रॉस हमने फुल लोड रेटेड इसकी वोल्टेज को अप्लाई करना है. ठीक है. सो बिकॉज हमारे पास जो ओपन सर्किट है, सो हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो वोल्टेज जो प्राइमरी साइड पे है वो VOC होगी. जो करंट यहाँ पे होगा दैट इज IOC ओपन सर्किट करंट. और यहाँ पे जो पावर हमारे पास आई है द प्राइमरी साइड दैट इज POC ओपन सर्किट पावर हमारे पास होगी. सेकेंडरी पे करंट हमारे पास ओपन सर्किट है, करंट 0 होगा, हमारे पास पावर 0 होगी, एंड ऑब्वियसली हमारे पास there's no left with the voltage on the secondary side, so all we left with the primary parameters VOC, IOC and POC. ये हम प्राइमरी की वोल्टेज, प्राइमरी के करंट और प्राइमरी के साइड पे जो पावर है उसको हम VOC, IOC and POC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So this is the open circuit test. देखें हमारे पास ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट था जिसमें हमने सेकेंडरी को क्या कर दिया, ओपन कर दिया,
और हमारे पास जो है वो प्राइमरी के क्रॉस हमने फुल लोड रेटेड वोल्टेज अप्लाई की। Now we know that RP and XP are too small as compared to RC and XM. Approximately all the voltages drop across the excitation impedance. Because यहाँ से हमारे पास सेकेंडरी ओपन कर दी है, ये वाले कंपोनेंट्स तो हमारे पास इंक्लूड ही नहीं होंगे। ये जो RP and XP है, बिकॉज जो हमारे पास प्राइमरी करंट है, ठीक है, सेकेंडरी तो ओपन है। अब जो हमारे पास इनपुट होती है प्राइमरी का करंट, अब देखिए प्राइमरी के दो पार्ट है आपके पास, इसका कुछ करंट जो है वो कंज्यूम हो रहा है कोर की एक्साइटेशन में, और बाकी सारा का सारा करंट जो है वो वाइंडिंग्स में जा रहा था। बिकॉज नो सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से सर्किट क्या है, ओपन टर्मिनल है। सो इनपुट करंट होगा वो सारा का सारा हमारे पास कहाँ पे जा रहा होगा, कोर को एक्साइट करोगे। सो देयर इज नो लेफ्ट विद द resistances potential drop on these resistances, and we can say that there is a very minimum amount of potential that would be dropped across these RP and XP. All of the voltage should be dropped across this excitation impedance. So convenient to consider admittance of the excitation branch and then compute RC and XM. So हम क्या करते हैं कि what we are saying, because secondary is open from here, ठीक है, और क्योंकि ब्रांच को हमने यहाँ पे एक्साइटेशन ब्रांच अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करें तो ये सारा का सारा ओपन है यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, सारा का सारा करंट किसमें कंज्यूम होगा, आरसी और जेएक्सएम में। सो बिकॉज ये पैरेलल में है तो इनके हमारे पास जो इम्पिडेंस आएगी वो 1/ZC की फॉर्म में हमारे पास इनकी इक्विवेलेंट इम्पिडेंस आ जाएगी। सो इंस्टेड कि हम इम्पिडेंस की टर्म में इसको सॉल्व करें, हम इसको एडमिटेंस की टर्म में सॉल्व कर देते हैं। एडमिटेंस इज नथिंग बट दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस, ठीक है, दैट यू ऑल नो। So convenient to consider admittance of the excitation branch and then compute RC and XM. So conductance of the core loss resistor GC is equals to 1 by RC. इस तरह से जिस तरह से हमारे पास admittance impedance का reciprocal है, ठीक है, और इम्पिडेंस आपको पता है R प्लस एक्स के बराबर होती है, R प्लस जे एक्स, जिसमें रेजिस्टेंस हमारे पास रियल पार्ट होता है, एक्स जो हमारे पास या रिएक्टेंस जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। जब हम उन दोनों को रियल और इमेजिनरी को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास इम्पिडेंस बनती है। इसी तरह से हमारे पास G जो है इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज टर्म्ड एज अ कंडक्टेंस। So we can also say that the conductance of the core loss resistor is GC, ठीक है, 1 by RC के इक्वल है। इसी तरह से जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, ससेप्टेंस होता है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय B। सो यहाँ पे हम मैग्नेटाइजिंग इंडक्टर की ससेप्टेंस को रिप्रेजेंट करें BM से, एंड दिस इक्वल्स टू 1 by XM। ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हम इंस्टेड के हम इम्पिडेंस में सॉल्व करें, हम उसको एडमिटेंस की टर्म में सॉल्व करें। नाउ वी कैन से इसकी जो एक्साइटेशन एडमिटेंस होगी वो हमारे पास किसकी इक्वल होगी, एडमिटेंस इज DC plus JBM, ठीक है, and this is equals to 1 by RC minus J by XM के इक्वल है, ठीक है, और we can say that admittance of the excitation impedance is equals to GC minus JBM. अच्छा, magnitude of YE refer to the primary side. अब because we know that कि यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे हमारे पास जो एडमिटेंस आएगी वो किसकी इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये ब्रांचेस तो हमारे पास सर्किट का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। ऑल एंड ऑल हमें ये फाइंड आउट करना है आरसी और एक्सएम की वैल्यू, तो यहाँ पर पास जो टोटल इंपेडेंस आ जाएगी वो किसकी इक्वल आएगी, इट इज इक्वल्स टू resistance किसके इक्वल होता है, ohms law, z should be equals to r should be equals to v by I, or z should be equals to v by I, because we are interested in admittance. This is a reciprocal of admittance, सॉरी इम्पेडेंस। तो हमारे पास यहाँ से एडमिटेंस किसकी इक्वल आ जाएगी, I by V के। अब बिकॉज हम ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करें, दिस इज IOC by VOC। और इसका जो पावर फैक्टर है रियल ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर हमारे पास जो है वो कॉस ऑफ थीटा की फॉर्म में होता है, बिकॉज ट्रांसफार्मर में हमारे पास जब हमने ऑलरेडी देखा कि करंट जो वोल्टेज को लैग कर होता है बाय सर्टेन एंगल थीटा, तो हमारे पास पावर फैक्टर कॉस ऑफ थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, POC डिवाइड बाय VOC टू IOC। ये आपको पता है कहां से, बिकॉज वी नो दैट P इज इक्वल्स टू VI cos ऑफ थीटा, तो cos ऑफ थीटा यहां से हम निकालेंगे P बाय VI के इक्वल है, बिकॉज अभी हम ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करें तो ये POC VOC इनटू IOC हमारे पास आ जाएगा। ये हम यहाँ से अगर हम थीटा निकालें विच इज अ फेज एंगल, ये आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ POC बाय VOC इनटू IOC, ठीक है। अब एडमिटेंस हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, IOC by VOC, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और इसका फेज हमारे पास कहाँ से आ जाएगा, थीटा के। माइनस का साइन हमने इसलिए लगाया बिकॉज दिस इज लैगिंग, करंट लैग्स द वोल्टेज। जब भी करंट
जो थीटा होता है बेसिकली ये फेज डिफरेंस होता है, वो करंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर करंट लैग कर रहा है तो वो माइनस होगा, अगर करंट लीड कर रहा है तो हमारे पास प्लस में होगा। अगर इक्वल होगा तो फेज डिफरेंस हमारे पास थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू IOC बाई VOC फेस, इसको थीटा की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी कॉस इनवर्स ऑफ पावर फैक्टर। और इसको अगर आप क्या कह रहे हैं, इसको हमने, ये फेजर फॉर्म है आपने पढ़ा होगा, और इसकी जगह हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखे हैं तो ये a माइनस जे बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है, जब हम उसी को फेजर फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास एक मैग्नीट्यूड और साथ उसका फेज आ जाता है। ये दोनों जो है हमारे पास वैलिड है। ठीक हो गया। हम यहाँ से ये जो एडमिटेंस हमारे पास निकल आएगी, इसका जो रियल पार्ट होगा वो हमारे पास कंडक्टेंस होगा, जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमारे पास ससेप्टेंस होगा। तो यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आरसी एंड एक्सएम। जो हमारे पास जीसी आएगा हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आरसी की वैल्यू आ जाएगी, और बीएम का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास एक्सएम आ जाएगा। सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आरसी एंड एक्सएम बाय परफॉर्मिंग द ओपन सर्किट टेस्ट। तो इट मींस दैट जब हम ट्रांसफार्मर के अक्रॉस ओपन सर्किट टेस्ट अप्लाई करेंगे तो हम एक्साइटेशन ब्रांच के पैरामीटर्स मिल जाएंगे जो कि आरसी एंड एक्सएम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपको नेम से इंडिकेट हो रहे हैं। ओपन सर्किट में हमने सेकेंडरी को ओपन कर दिया, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमने क्या कर दिया, सेकेंडरी को शॉर्ट कर दिया। सो दिस इज हाउ वी हैव टू परफॉर्म द शॉर्ट सर्किट ऑन अ फिजिकल ट्रांसफार्मर, दैट वी हैव टू शॉर्ट द secondary side. So in this test, the secondary terminals of the transformers are short circuited. So what we have to do, we have to apply a fairly low voltage to the primary side till current and the short circuit winding is equals to the rated current. अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, प्राइमरी की वोल्टेज को लो रखना है अंटिल के हमारे पास जो करंट है शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग में, मतलब सेकेंडरी में वो इक्वल किसके हो जाएगा, रेटेड करंट के। मतलब जितना मैक्सिमम करंट एट अ ट्रांसफार्मर कैन बियर, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी उतना करंट जो है वो हमारे पास डेवलप हो जाए। मेक श्योर टू कीप द प्राइमरी वोल्टेज लो। अब ये प्राइमरी को लो करने का पर्पस सिर्फ ये है बिकॉज अदरवाइज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट आपको पता है इट विल ड्रॉ द मैक्सिमम करंट। अगर हम प्राइमरी को जो है वो हाई रखेंगे तो ये एकदम से इनरश करंट ड्रॉ करेगा और वाइंडिंग्स जो है वो जल जाएंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी वोल्टेज को लो रखते हैं ताकि जो है वो हमारे पास ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग सेफ रहे। ठीक है, अच्छा, अगेन शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमने क्या करना है, सेकेंडरी को शॉर्ट कर देना है। अगेन हमने वॉटमीटर कनेक्ट करना है, और अब हमने अगेन वोल्टेज को, करंट को और पावर की वैल्यू को यहाँ से जो है वो मेजर कर लेना है। ठीक है, so again the input voltage, current and power are to be measured. Negligibly current flows through the excitation branch as the input voltage is very low. अच्छा, अब एक बात आपने याद में रखनी है, क्योंकि सर्किट हमारे पास ये है, अब इसमें क्योंकि इनपुट वोल्टेज बहुत कम है तो एक्साइटेशन ब्रांच में से वेरी मिनिमम करंट जो है वो फ्लो करेगा। बाकी जो है वो हमारे पास क्योंकि सेकेंडरी शॉर्ट है तो सारा का सारा करंट हमारे पास वाइंडिंग्स में से फ्लो करता जाएगा, जबकि इसके क्रॉस वेरी मिनिमम, एक्साइटेशन ब्रांच के क्रॉस वेरी मिनिमम करंट फ्लो करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्साइटेशन ब्रांच को इग्नोर कर देते हैं। वोल्टेज ड्रॉप कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सीरीज एलिमेंट इन द सर्किट। तो सारा का सारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हम किस में कंसीडर करें, सीरीज ब्रांच में, व्हाइल वी आर इग्नोरिंग द एक्साइटेशन ब्रांच। अब मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ द सीरीज इंपेडेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब अगेन हमारे पास जो यहाँ से इनपुट वोल्टेज आएगी वो VSC हम उसको कह सकते हैं, जो करंट आएगा वो ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, और जो पावर आएगी वो हमारे पास PSC आ जाएगी। अगेन हमारे पास क्योंकि हमने वोल्टमीटर कनेक्ट किया हुआ, हमें वोल्टेज की भी इंफॉर्मेशन देगा, करंट की भी। तो हमारे पास V और I दोनों होंगे, तो हम यहाँ से इसकी इंपेडेंस निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू V बाई I। इसी तरह से हमारे पास P की इंफॉर्मेशन भी है, V और I दोनों की इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ से हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं विच इज कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ से हमें फेस पता चल सकता है दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ P बाई I। V कीपिंग इन माइंड दिस इज PSC, दिस इज ISC एंड दिस इज VSC, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट एंड शॉर्ट सर्किट पावर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से इम्पिडेंस भी है, फेज भी है, तो यहाँ से हम इसकी टोटल इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड भी है और फेज भी है, तो यहाँ से हम टोटल इम्पिडेंस हम निकाल सकते हैं विच इज इक्वल्स टू VSC बाई ISC इनटू फेज हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है इम्पिडेंस किसकी इक्वल है, सीरीज इम्पिडेंस है, एक्साइटेशन ब्रांच आपने इग्नोर किया हुआ है, सो दिस इज R इक्विवेलेंट प्लस X इक्विवेलेंट की इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट और X इक्विवेलेंट। अब इसका जो इम्पिडेंस हम यहाँ से निकालेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V, I and P, इसका जो रियल पार्ट आएगा वो हमारे पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा, जिसका इमेजिनरी पार्ट आएगा वो हमारे पास X इक्विवेलेंट आएगा। We know that R equivalent is RP plus A square। RS as the circuit is referred to the primary side। तो एक ही हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, हमें पता है कि टर्न्स रेशियो क्या होती है, तो वी कैन फाइंड आउट RP, RS, XP and XS by performing the short circuit test।
So by performing short circuit and open circuit test, we can find out, we can determine the transformer parameters, each and every parameter. अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2.2। ठीक है, आपकी बुक की एग्जांपल है। इसमें यह कि द क्यूमुलेटिव सर्किट इंपेडेंस ऑफ ए 20 केवीए का हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, 20 केवीए का मतलब ये है कि इसकी रेटेड पावर है, इतनी पावर ये ट्रांसफार्मर हैंडल कर सकते हैं। 8000 बाय 240 वोल्ट, 8000 बाय 240 वोल्ट का मतलब ये कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जिसकी प्राइमरी अगर 8000 है तो सेकेंडरी पे हमें 240 वोल्ट ये देगा। 60 हर्ट्ज इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आर टू बी डिटरमिन्ड। The open circuit test and short circuit test were performed on the primary side of the transformer and the following data were taken. ठीक है, अब जो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट थे वो दोनों प्राइमरी साइड पे अप्लाई किए गए थे। ठीक है, और हमारे पास जो ये डेटा हमें मिला था, find the impedance of the approximate equivalent circuit, refer to the primary side and sketch the circuit। हमने क्या करना है कि जो approximate equivalent circuit है उसकी सारी impedances हमने निकालनी है और सर्किट को हमने स्केच करना है। अब जब ओपन सर्किट टेस्ट प्राइमरी साइड पे परफॉर्म किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आई थी, वही आपको पता है वॉट मीटर कनेक्ट करेंगे तो वी आई और पी की वैल्यू आएगी। जब हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया, मतलब सेकेंडरी को शॉर्ट किया, तो हमारे पास ये वैल्यूज आई, वी आई एंड पी की वैल्यूज आई, इनकी वैल्यूज है। अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने ट्रांसफार्मर के सारे पैरामीटर्स को डिटरमिन करना है। So because we have V, P and I की इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ से हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास cos ऑफ थीटा आएगा, विच इज इक्वल्स टू POC डिवाइडेड बाय VOC टाइम्स IOC, और यहाँ से हमारे पास 0.234 आएगा, एंड दिस इज लैगिंग। अगर लैगिंग नहीं भी आप लिखते तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं भी माइनस में आ रहा तो आपको पता होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली जो है वो करंट लैग करता है वोल्टेज को, इन केस ऑफ ए ट्रांसफार्मर, तो आपके पास लैगिंग पावर फैक्टर ही देगा। दूसरी चीज अपने ओपन सर्किट से जो इंडिकेट करनी होती है वो एक्साइटेशन एडमिटेंस है, वो हमारे पास आ जाएगा I by V के एंड फेज ऑफ माइनस कॉज इनवर्स ऑफ पावर फैक्टर। अब देखो I की वैल्यू है, V की वैल्यू भी है, कॉज इनवर्स ऑफ पावर फैक्टर हमने यहाँ से निकाल लिया था जो कि 0.234 है। इसको कैलकुलेट करके वी कैन फाइंड आउट इसका एडमिटेंस का मैग्नीट्यूड और एडमिटेंस का फेज, बिकॉज दिस इज फेजर फॉर्म। इसको जब हम फेजर से रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करेंगे, पोरस से रेक्टेंगल में, तो हमारे पास ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब इसका जो रियल पार्ट है वो हमारे पास G है, इसका इमेजिनरी पार्ट GC है, इसका इमेजिनरी पार्ट B है, हमें RC और XM चाहिए। तो हमें सिंपली क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल लेना है, तो हमारे पास RC और XM दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी बाय ओपन सर्किट टेस्ट। अच्छा, अब हम दूसरी चीज इसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट के पैरामीटर्स को लेते हैं और वहां से हमें R इक्विवेलेंट और X इक्विवेलेंट की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, अब अगेन हमने पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट टेस्ट वैल्यूज। हमारे पास पावर फैक्टर आ गया 0.196 लैगिंग। सीरीज इम्पीडेंस हमारे पास आ जाएगी V by I, शॉर्ट सर्किट के पैरामीटर्स को, साथ में इसका फेज आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो इससे एडमिटेंस सीरीज इम्पीडेंस आएगी 38.4 प्लस J192 ओम। पोलर फेजर में ये था, रेक्टेंगल में ये वैल्यू आके इसको पता है, इसका जो आपके पास रियल पार्ट है वो R इक्विवेलेंट है, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास क्या है, X इक्विवेलेंट आ गया। अब हमने सर्किट को मॉडल कर लेना है, क्योंकि सारा का सारा सर्किट प्राइमरी साइड पर रेफर है, तो एक्साइटेशन ब्रांच आ गई, हमारे पास सीरीज इंपेडेंस आ गई, हमने इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर दी, ताकि हमारे पास जो है वो दिस बिकॉज़ द सर्किट इज रेफर टू द प्राइमरी साइड, सो दिस इज IS by A and this is AVS। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी। वोल्टेज रेगुलेशन इज एक्चुअली हाउ मच वोल्टेज कैन बी रेगुलेटेड, या हमारे पास फुल लोड से नो लोड वोल्टेज में जो हमारे पास डिफरेंस आता है वो रेगुलेशन के है। ठीक है, सो आइडियली व्हाट वी वांट कि किसी भी डिवाइस का या किसी, अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, बट there would not be zero in case of any real transformer, but what we have to do, we have to keep it as minimum as possible. Due to the series impedance in a transformer, the output voltage of a transformer varies with the load even if the input voltage remains constant। अच्छा, अब ये चाह रहे होते हैं कि हमने इनपुट अप्लाई की हुई है और आउटपुट वोल्टेज हमारे पास जो है ना वो कांस्टेंट रहे, इररिस्पेक्टिव कि हम उसके क्रॉस कितना लोड कनेक्ट करें, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, बिकॉज इट हैज अ सर्टेन वाइंडिंग रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से इफ वी आर कीपिंग द इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट, लेकिन आउटपुट जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो हमारे पास क्या करे, वो वेरी होती रहेगी डिपेंडिंग ऑन कि हमने किस टाइप का लोड जो है वो यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है और कितना सर्किट में से करंट जो है वो ड्रॉ कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ रेगुलेशन, जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में डिफरेंस आ रहा होता है।
So full load voltage regulation is a quantity that compares the output voltage of a transformer at no load with the output voltage at a full load. मतलब कि जो हमारे पास हम जब लोड के आउटपुट के क्रॉस जो हमारे पास जो भी आपके पास जहां से हम आउटपुट कनेक्ट कर रहे हैं जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी के क्रॉस जब हमने कोई भी वोल्ट लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ तब उसकी वोल्टेज क्या होगी, और जब हम उसके क्रॉस लोड कनेक्ट करेंगे और लोड की वैल्यू को हम मैक्सिमम तक ले जाएंगे, इन दोनों के दरमियान में जो वोल्टेज का डिफरेंस आता है वो हमारे पास उसको हम फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। नो लोड वोल्टेज रेगुलेशन भी होता है, फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन भी होता है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द कंपैरिजन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज स्टार्टिंग फ्रॉम द नो लोड टू द full load. So it is called as a VR. It is in percentage. So it is secondary voltage at no load minus secondary voltage at a full load divided by secondary voltage at the full load. And again keep it in mind, जब हमारे पास लोड कोई भी कनेक्ट नहीं होगा तो आउटपुट में मैक्सिमम वोल्टेज होगी। जैसे जैसे हम लोड लगाते जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि लोड पोटेंशियल कंज्यूम कर रहा है, और फुल लोड पे हमारे पास कम से कम जो है वो पोटेंशियल आएगा। Since at no load Vs is equals to Vp by A, क्योंकि लोड कनेक्टेड नहीं है, प्राइमरी का सारा पोर्शन सेकेंडरी पे जा रहा है, so this is Vp by A minus Vs full load divided by Vs full load time 100%. अच्छा, लो वोल्टेज रेगुलेशन मींस स्मॉलर वाइंडिंग इम्पीडेंस। अब वोल्टेज रेगुलेशन जितनी कम होगी उसका मतलब है कि इम्पीडेंस की जो इम्पीडेंस है वाइंडिंग की वो उतनी ही कम है। एंड प्रैक्टिकली या आइडियली तो इट शुड बी 0%, बट प्रैक्टिकली एफिशिएंसी के लिए वी हैव टू कीप इट एज मिनिमम एज पॉसिबल। ठीक है, तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस को हम कम से कम जो है वो अगर हमारे पास होगी तो हमारे पास कम से कम वोल्टेज रेगुलेशन आएगी और वो एफिशिएंसी की तरफ ट्रांसफॉर्मर जाएगा। Sometimes high impedance and high voltage regulation transformers are used to reduce the fault current. Sometimes ये यूज भी होता है, लेकिन ये क्योंकि आपके उससे रिलेटेड नहीं है ट्रांसफार्मर के कॉन्सेप्ट से फॉल्ट करंट, इसलिए इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। बट somehow high voltage regulation भी कुछ चीजों में यूज हो सकती है, बट as far as the efficiency of the transformer is concerned, voltage regulation should be minimum. अच्छा, next is the phasor diagram of a transformer. फेजर डायग्राम्स ये होती हैं कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट एनी मॉडल ऑफ द ट्रांसफार्मर, या किसी भी डिवाइस को हम किस तरह फेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम इसके क्रॉस केवीएल अप्लाई करें तो इनपुट जो वोल्टेज है वो किसकी इक्वल है, वीपी बाय ए, इफ द ट्रांसफार्मर इज रेफर टू द सेकेंडरी साइड। अब इसका कुछ पोर्शन तो सेकेंडरी के क्रॉस जा रहा है, दिस इज वीएस, और बाकी कुछ वाइंडिंग रेजिस्टेंस के क्रॉस जा रहा है आर इक्विवेलेंट आईएस, और बाकी जो है वो इसके क्रॉस जा रहा है जे इक्विवेलेंट आईएस। ठीक है, रिपीटिंग माइंड एक्साइटेशन ब्रांच वेरी मिनिमम करंट को कंज्यूम कर रही है और वो प्रैक्टिकली कर भी रही होती है, इसको सिर्फ एक्साइटेशन के लिए छोटा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है। अब यहाँ पे देखिए, बिकॉज Vp by A is greater than Vs, means primary voltage is greater than secondary voltage. So अगर हमारे पास फेजर डायग्राम से अगर हम यही चीज कंपेयर करें तो वो कैसे हमारे पास आएगा। देखिए, फेजर डायग्राम के लिए हम सबसे पहले कोई भी एक रेफरेंस या बेस ले लेते हैं वोल्टेज का। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं Vs को एज ए रेफरेंस वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, और जो इसका करंट होगा Is वो इस सेकेंडरी वोल्टेज को लैग कर रहा है बाय सर्टेन एंगल थीटा, जो कि इसका पावर फैक्टर है। ठीक है, अब हमने इसमें जो है ना Vs के साथ हमारे पास इस इक्वेशन को हमने बेसिकली इंप्लीमेंट करना है। अब Vs है, Vs में हमें ऐड करना है इस IR इक्विवेलेंट को, Is into R इक्विवेलेंट को। ठीक है, सो Is R इक्विवेलेंट आपको पता है, रेजिस्टर जो है वो हमारे पास जो है वो रेजिस्टर के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज इन फेज होती है। करंट और वोल्टेज के दरमियान में जो फेज इन फेज होते हैं, मतलब उनके दरमियान में फेज डिफरेंस कोई भी नहीं होता। इफ यू टॉकिंग अबाउट अ रेजिस्टर, थीटा इज 0, तो हमारे पास क्या होगा, R equivalent Is is actually the voltage drop across the wait अच्छा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, मैं अच्छी खासी लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, अब मैं इसको जो है ना वो डिस्कार्ड नहीं करना चाहती। एक्चुअल में एक बिल्ली आ गई थी, इस वजह से जो है ना मैं डर गई थी। ठीक है, so we continue with our lecture. So because we know that the voltage drop across resistor is in phase with the current, so ये हमारे पास Is into R equivalent voltage drop है इस resistance के cross, so it is in phase with the current. So ये इसी की phase में आ जाएगी, जो phase इसका बन रहा है Is का, वही phase हमारे पास क्या बनेगा, Is into R equivalent का।
नेक्स्ट हमें इसमें जो ऐड अप करना है वो जे एक्स इक्विवेलेंट इनटू आई एस है। अब आपको पता है कि इंडक्टर के क्रॉस, ये एक्चुअल में इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज जो है वो लीड करता है करंट को बाय 90 डिग्रीज। ठीक है, ये इंडक्टर की बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि इंडक्टर में जो है वो आपके पास करंट लीड कर रहा था बाय 90 डिग्री, कैपेसिटर में क्या कर रहा था, लैग कर रहा था। तो हमने क्या किया कि यहाँ से आर इक्विवेलेंट आई एस के 90 डिग्री पे हमने क्या कर दिया, इसके क्रॉस पोटेंशियल को प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फेजर बन गया आई एक्स इक्विवेलेंट आई एस का। अब इन सबको अगर हम ऐड अप करें, वी एस प्लस आर इक्विवेलेंट आई एस प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट आई एस, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, वीपी बाई ए के। ठीक है, यहाँ हमने सिंपल वेक्टर डायग्राम, वेक्टर्स को जो है वो ऐड अप किया, जैसे वेक्टर्स को हम ऐड अप करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम फेजर्स को जो है वो ऐड अप करते हैं। सो दिस इज वोल्टेज रेगुलेशन विद लैगिंग पावर फैक्टर। अगर हमारे पास पावर फैक्टर लैगिंग होगा, नॉर्मली लैगिंग ही होता है इन केस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। लैगिंग का मतलब ये है कि करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है बाय 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ये लैगिंग है, मतलब उससे पीछे आ रहा है। अगर उसी को लीड कर रहा था तो वो इस तरह से होता है। ठीक हो गया। So voltage regulation of a transformer with lagging power factor must be greater than 0. So यहाँ से because VP by A is greater than VS, तो हमारे पास जो lagging power factor के केस में voltage regulation हमेशा greater than 0 ही आएगी। अच्छा, अगर हमारे पास ये यूनिटी पावर फैक्टर आएगा, यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब ये है कि हमारे पास फेज डिफरेंस 0 है। इसका मतलब ये है कि VS और IS इन फेज हैं। सो IS आर इक्विवेलेंट P IS के इन फेज ही आ जाएगा, इसी इसमें आ जाएगा। देखिए ये VS है और ये IS है। ठीक है, तो IS आर इक्विवेलेंट इसी फेज में ही आ गया। एक्स इक्विवेलेंट IS को 90 पे जो है वो लीड करेगा। ठीक है, तो बिकॉज ये इसका एग्जैक्टली 90 डिग्री हमारे पास ये बन जाएगा, और इन तीनों को जब हम ऐड अप करेंगे तो वो हमारे पास VP बाय A की बुलाएगा। अब वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर विद द यूनिटी पावर फैक्टर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली ये 0 से ग्रेटर है, however it is a very small number compared to the leading lagging power factor। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है वो ग्रेटर आएगा, लेकिन स्टिल इट इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अगर हमारे पास पावर फैक्टर लीडिंग आएगा, जो कि बहुत कम सिनेरियो होता है कि पावर फैक्टर हमारे पास लीडिंग आई। लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब ये है कि करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है बाय अ सर्टेन एंगल। सो अगेन हमारे पास जो उस केस में इक्वेशन बनेगी Vp बाय इज इक्वल टू Vs प्लस, वही इक्वेशन है, लेकिन क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे देखिए जब हम इस इक्वेशन को इंप्लीमेंट करेंगे लीडिंग पावर फैक्टर के केस में, तो हमने वही रेफरेंस वोल्टेज ली Vs। अब क्योंकि पावर फैक्टर लीडिंग है तो IS इस वोल्टेज को लीड कर रहा है बाय अ सर्टेन एंगल थीटा। दिस एंगल इज कॉल्ड एज थीटा। अब वही इक्विवेलेंट उसको जो हमने इंप्लीमेंट करा, इस इक्वेशन को VS में हम ऐड करेंगे IS आर इक्विवेलेंट। IS आर इक्विवेलेंट इस IS के इन फेज है, तो ये इसी के इन फेज आ गया। एक्स इक्विवेलेंट इसको 90 डिग्री पे जो है वो रीच कर है, हमने इसका 90 बना लिया, और जब हम इन तीनों को ऐड अप करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, VP बाय A आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें इस फेजर डायग्राम को देख के, we can see that VP by A is less than VS, so it means that if the secondary current is leading, the secondary voltage can be actually higher than the preferred primary voltage, which means a negative voltage regulation। कि जब भी हमारे पास लीडिंग पावर फैक्टर आएगा तो हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी इज गिवन बाय, आपको पता है और एफिशिएंसी क्या होती है, पी आउट बाय पी इन की इक्वल होती है हमेशा आउटपुट बाय इनपुट, क्योंकि हम इसको पावर के टर्म्स में ये कर रहे हैं। सो दिस शुड बी पी आउट बाय पी इन, बिकॉज इट परसेंटेज, सो इट इज मल्टीप्लाई बाय 100%। अब पी आउट डिवाइडेड बाय इनपुट पावर को हम लिख सकते हैं आउटपुट प्लस इसमें जो लॉसेस आ रहे हैं, लॉसेस आपको पता है कौन कौन से लॉसेस है, कॉपर लॉसेस, कोर लॉसेस, के लॉसेस है। From the equivalent transformer circuit, efficiency can be easily calculated. Power losses compromises copper losses, hysteresis losses, eddy current losses. At any given load, efficiency can be calculated as P out is equals to, because we know that VSIS cos of theta. So efficiency should be VSIS cos of theta S P copper plus P core plus VSIS cos of theta multiplied by 100। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जो एग्जाम्पल 2.5 है ये आपकी होम असाइनमेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम इस लेक्चर को जो है वो यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी कंप्लीट होगी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द ट्रांसफार्मर टैप्स एंड अदर ट्रांसफार्मर्स इन द थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स। आई होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, लेक्चर अच्छी तरह से समझे। जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे हम ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।